Okay, so a very good morning to all. So in the previous lecture, we have started with the algorithm of the Gauss-Seidel network, Gauss-Seidel method for the solution of the load flow problem when the PV buses are not present. So we have started with the first two steps, then we were about to see the next parts. So let us start this from today. So the first step that we have to follow is formation of the Y bus. We have already said that Y bus is important to us. Y bus is important to us because Y bus is the most convenient way to solve the various problems associated with the um, load flow studies. So that's why we consider the Y bus. And while framing Y bus, we use the line data for resistance, reactance, and half-line charging admittance of various lines from Y bus. Then assume initial bus voltage Vi0 is equal to 1 plus J0 for I is equal to 1 to not 1. I should never be equal to 1 because 1 we are going to designate with the slack bus, which will be the reference for us. That's why 1 हमें किसी को भी नहीं देना है. 1 छोड़ के बाकी के जो numbers है वो हमें सारे buses को देने हैं. 1 will be always considered as the slack bus only. Slack bus ही रहेगा 1. Okay. Then set the iteration R is equal to 0. R is equal to 0 and delta Vmax is equal to epsilon. Epsilon is the accuracy or the iteration when we will be doing what will be the difference between the two consecutive iteration that we have to consider. And convergence के लिए हमें कितना accuracy चाहिए वो हमें डिफाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कन्वर्जेंस 0.0001 ऐसा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको प्रोग्राम में वो डिफाइन करना पड़ेगा. जो प्रोग्राम रहेगा वो प्रोग्राम में आपको ये चीज क्लियरली बतानी पड़ेगी कि आपको कन्वर्जेंस कब चाहिए है. दैट मीन्स दो कंसेक्यूटिव इटरेशन के जो वैल्यूज है वो किस लेवल तक एक्यूरेट चाहिए तब आप कन्वर्जन करोगे. So that is the delta Vmax. Then compute AI and BIK from equations 27 and 28. तो already AI और BIK क्या है ये हमने already देखा हुआ है. So this is AI PI minus JQI upon YII for I is equal to 2, 3 dash up to n. Similarly BIK जो है that is Yik upon Yii for I is equal to 2, 3 dash up to n. So this is the fourth step. Then fifth step is set bus count is equal to 1. तो bus count equal to 1 हम put करेंगे और एक एक करके सारे values हम निकालते जाएंगे. Okay, so in this way we are going to follow our algorithm. So if bus is PQ, then compute VI R plus 1 from equation 29. So let us see what is 29. This is the 29th equation. VI R plus 1 is equal to AI upon VI to the power R, that is VI R को क्या सेट किया हुआ है. R को हमने काउंट सेट किया हुआ है, मतलब हमारा जो इटरेशन काउंट है वो है इटरेशन 1, इटरेशन 2, 3 एंड सो ऑन. दैट इज द काउंट ऑफ R माइनस समेशन ऑफ BIK VK to R plus 1 summation K is equal to 1 to I minus 1 minus summation of K is equal to I plus 1 to N and BIK VK R. तो ये हमें निकालना है स्टेप नंबर 6 में. Then if delta VI R
is greater than equal to delta V max. डेल्टा V max क्या है? अभी हमने बताया कि हमें दो कंसेक्यूटिव इटरेशन में कितना एक्यूरेसी चाहिए, तभी हम हमारे प्रोग्राम then our program should converge, ये हमें बताना पड़ेगा. प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम है, आप जो प्रोग्राम बनाओगे, whether it is in MATLAB, whether it is in C programming, whether it is in Python programming, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको कन्वर्जन्स कब करना है ये आपको प्रोग्राम को बताना पड़ेगा. अदरवाइज दिस प्रोग्राम विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, है ना. मतलब इटरेशंस जो है वो तो कंटिन्यूअसली चलते ही जाएगा, इटरेशन कभी बंद ही नहीं होगा. So that's why we have to consider the conversions. हम conversions कब करेंगे ये हमें पता रहना चाहिए, तभी हम एक एक करके सारी चीजों को नोट कर पाएंगे. अदरवाइज हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि कन्वर्जन्स, कितने कन्वर्जन्स करना. जैसे थियरी प्रॉब्लम अगर है, जब हम कॉपी में इसे सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी डू इज वी रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू फ्यू इटरेशंस. जैसे आप लोगों ने गॉस सीडल न्यूमेरिकल टेक्निक पढ़ा होगा, तो गॉस सीडल न्यूमेरिकल टेक्निक जब आपने पढ़ा तो गॉस सीडल न्यूमेरिकल टेक्निक में आपको प्रॉब्लम में ही दिया हुआ जाता था कि आपको इटरेशंस कितने करने हैं, लाइक 3 इटरेशंस, 4 इटरेशंस, 5 इटरेशंस एंड सो ऑन. तो इटरेशंस कितने करने हैं ये आपको पहले से ही बताया जाता था. बट सपोज यू डोंट नो हाउ मेनी इटरेशंस आर टू बी डन, आपको नहीं पता है कि कितने इटरेशंस करने हैं, तब हमें ये एप्सिलॉन जो है कन्वर्जेंस फैक्टर, ये हम बोलेंगे कन्वर्जेंस फैक्टर. कन्वर्जेंस फैक्टर मतलब हम इन्हें बता रहे कि हमें कन्वर्जेंस कब चाहिए, मतलब कन्वर्जेंस कब होना चाहिए ये हमें हमारे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा. तभी हमारा प्रोग्राम जब दो कंसेक्यूटिव इटरेशन में वैल्यूज फाइंड करेंगे तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. दोनों का डिफरेंस निकाल के अगर हमारा कन्वर्जेंस जो हमने एप्सिलॉन डिफाइन किया हुआ है वो अगर उससे कम है तो इटरेशन काउंट फिर से 1 से बढ़ेगा. जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखो, VIR इज इक्वल टू VIR प्लस 1. मतलब अगर हमारा डेल्टा VIR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा V max, मतलब डेल्टा V max अगर हमने 0.0001 ये एक्यूरेसी कंसिडर किया हुआ है और अभी एट प्रेजेंट हमारे दो कंसेक्यूटिव इटरेशन में वो वैल्यू उससे ज्यादा आ रहा है, तो हमें इटरेशन को बढ़ाना है. मतलब हमारा जो काउंट है इटरेशन का वो बढ़ जाएगा. मतलब फर्स्ट इटरेशन से हम सेकंड पे आएंगे, सेकंड से थर्ड पे आएंगे, थर्ड से फोर्थ पे आएंगे एंड सो ऑन. सपोज 17th और 18th इटरेशन का जो डिफरेंस है, मतलब 18th इटरेशन में आपको जो वैल्यूज मिले और 17th इटरेशन में जो आपको वैल्यूज मिले, वो वैल्यूज में अगर ये डेल्टा V max ग्रेटर नहीं है, डेल्टा V max क्या है? एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज योर कन्वर्जेंस फैक्टर. सो कन्वर्जेंस फैक्टर आपने जो भी लिया हुआ है, अगर आपके दो कंसेक्यूटिव इटरेशन के डिफरेंस में वो वैल्यू उससे छोटा आ रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम वहां पे टर्मिनेट होना चाहिए और आपको आपके प्रोग्राम ने रिजल्ट्स बताना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द इटरेशन नंबर 18 दीज आर द रिजल्ट्स. ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सभी को कि एल्गोरिदम किस तरीके से चलेगा? गॉस सीडल न्यूमेरिकल टेक्निक आप लोगों ने जब 4th सेम में पढ़ा था तब शायद आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि न्यूमेरिकल टेक्निक का एप्लीकेशन हमारे इलेक्ट्रिकल में लोड फ्लो एनालिसिस में होने वाला है. बट यस, एवरीथिंग दैट वी रीड और हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो हमें जो दिए गए हैं वो बहुत सोच समझ के दिए हुए हैं. हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब उसका एप्लीकेशन है, ये सब चीजें ऑलरेडी फ्रेम्ड होता है. दैट्स व्हाई हमें जो न्यूमेरिकल टेक्निक पढ़ाया गया है उसका आज हमें एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं लोड फ्लो स्टडीज में. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको कि ये इटरेशन कैसे बढ़ते जाएंगे प्रोग्राम में? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स फास्ट. ये एप्सिलॉन जो हमने लिया हुआ है, एप्सिलॉन इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस फैक्टर. एप्सिलॉन को क्या बताया जाता है?
कन्वर्जेंस फैक्टर। तो ये एप्सिलॉन हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना एक्यूरेसी चाहिए हमारे इटरेशन में। एक्यूरेसी के बेस पे फिर हम प्रोग्राम के इटरेशंस को बढ़ाते जाएंगे। एक बार हमें एक्यूरेसी मिल गई, हमने अगर एप्सिलॉन ने एप्सिलॉन को डिसाइड किया हुआ है 0.0001, तो दो कंसेक्यूटिव इटरेशन के डिफरेंस अगर ये 0.001 या उससे कम आता है तो हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट इन द सेंस हमारा प्रोग्राम का लूप कंप्लीट हो जाएगा और हमें एट द एंड रिजल्ट्स मिलेंगे। इज क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई फास्ट। नहीं समझ में आया तो पूछो। स्टेप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 6 में हमें ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद इंक्रीमेंट द बस काउंट i इक्वल टू i। हमारा जो स्लैक बस है, स्लैक बस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी के सारे बसेस के हम ये पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सपोज बस नंबर 2 के पैरामीटर बहुत सारे इटरेशन करने के बाद स्टेबल वैल्यू आया है, तो फर्स्ट इटरेशन, फिर सेकेंड इटरेशन, फिर थर्ड इटरेशन, इस तरीके से वैल्यूज कंटिन्यू होते जाएंगे जब तक हमें कन्वर्जेंस नहीं मिलता है। देखो स्टेप नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, चेक कन्वर्जेंस। इफ डेल्टा वी मैक्स इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, then increment count r is equal to r plus 1, go to step 5 repeat or else terminate। तो has everyone completed? सबका हो गया ये लिख के? if it is complete then we will see the flow chart को बनाना है आपके कॉपीज में। it will take time, फ्लो चार्ट को बनाने को टाइम लगेगा, इसीलिए ये हो गया तो बता दो। We will go to the next slide, then you all will be able to draw the flow chart. Okay, so let's go to the next slide. So you have to enlarge this in your screen and draw in your copy. This is very important. ये बहुत ही important in the आप लोगों ने सारे steps जो इसमें लिखे हुए हैं algorithm में, all those steps are included in the form of flow chart. Flow chart आप सभी लोगों को पता है what is flow chart, what is the meaning of flow chart. When we give the block diagram representation of the flow of algorithm, that becomes the flow chart. So जैसे आप देखोगे start के बाद read system data and formulate the y bus, ये हमारा step 1 है। उसके बाद assume initial bus voltage, ये step 2 है। then set iteration r is equal to 0, ये step 3 है, and so on. You will all see that सारे steps एक के बाद एक जो भी आप लोगों ने लिखा हुआ था वो सब वहां पर आ गया है, right? So all those steps have already come there. So you will see that कि सारे steps वहां पे आ चुके हैं और सारे steps हमें वहां समझ में आ रहा है कि सारे steps वहां पर हमें मिल चुके हैं, ठीक है। So all the algorithm steps that you all have written in the previous step, all these are there here. Next we will see ये सारे conditions कब थे, जब PV buses नहीं थे। So we have already seen in detail in the previous lecture कि PV बस नहीं रहे तो क्या रहेगा, है ना। PV बस रहा तो क्या होगा। PV buses are basically the generation buses. So PV बस जो है ये हमारे जनरेशन बसेस है। जनरेशन बसेस में क्या होगा, जनरेशन बसेस में हमारे पास होंगे P और V, मतलब हमें एक्टिव पावर P दिया हुआ रहेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज V दिया हुआ रहेगा, राइट। ये दो चीजें हमें दी हुई रहेगी इन केस PV buses present तब। But when PV buses are not present, then we can assume that all the buses are PQ buses. PQ buses मतलब PQ buses will
have the known quantity as P, unknown quantity as Q, and P and Q are known quantities, V and delta are unknown quantities. इसीलिए हम ये V निकाल रहे हैं. Now next case, let us see when the PV buses are present in the system. So please note down all these points. When PV buses are there in the system, what we have to consider, then I will explain this complete things. पूरे ये चीज मैं आपको समझा के बताऊंगा. प्लीज नोट डाउन दिस थिंग. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं और ऑफलाइन में भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है. सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस. देन वी विल सी कि पीवी बसेस अगर सिस्टम में आया तो हमें क्या चेंजेस करने हैं हमारे प्रोसीजर में. The procedure that we will follow, what we will make the changes, that we will see. Please write all these points. So in case of a PV bus, if we have the PV bus in our system, then we have to first check the reactive power limit. हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? हमें सबसे पहले चेक करना है रिएक्टिव पावर लिमिट्स. आप देखोगे वहां QI min लेस देन QI max ये दिया हुआ है. That means हमारा जो QI का लिमिट है that should be within the minimum and the maximum limit, because if this is violating then the system will become PQ bus. That's why for PQ bus the voltage is as usual in the previous case, but when we check the PV buses, हमें जब PV buses को चेक करना है तो हमें उसका रिएक्टिव पावर के लिमिट्स को चेक करना है. और रिएक्टिव पावर के लिमिट्स को कैसे चेक करेंगे? फॉर्मूला देखो वहां लिखा हुआ है QI is equal to minus imaginary IM मतलब imaginary part of summation K is equal to 1 to N YIK VK for I is equal to x plus 1 x plus 2 dash 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 up to N. मतलब आपका जो N बस सिस्टम है, इस N बस सिस्टम में there can be few buses of PV bus. कुछ बसेस जो है हमारे वो PV बस हो सकते हैं, बाकी बचे हुए PQ बस रहेंगे. तो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एक 10 बस सिस्टम है और इस 10 बस सिस्टम में वन विल बी स्लैक बस, क्योंकि वो कॉमन है, स्लैक बस चेंज होगा नहीं. सो स्लैक बस विल बी कॉमन. देन वी विल हैव PQ buses. Let's say 7 number of buses are PQ buses. So 7 plus 1 8 हो गया. अब जो बचे हुए दो बसेस है वो दो बसेस जो है PV बस है. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. सो ये जो दो PV बसेस है, जब हम इटरेशन करेंगे, जब हमारा गॉस सीडल नेटवर्क का इटरेशन चलेगा, तब जब हम इन बसेस पे आएंगे तो हमें इन बसेस के लिए इनके जो रिएक्टिव पावर के लिमिट्स है ये सबसे पहले हमें चेक करने हैं कि वेदर इट इज इन द गिवन रिएक्टिव पावर लिमिट्स और नॉट. If it is not, then we will have to make it in the lower limits. अगर lower limit के भी नीचे जा रहा है तो हमें lower limit को consider करना है, और अगर higher limit के ऊपर जा रहा है calculated reactive power तो हमें higher level जो है वो consider करके फिर आगे का problem solve करना है. Okay, is it clear everyone?
सबको समझ में आ रहा है? So for the ith PV bus, we have to maintain the magnitude of voltage at a specified the voltage at the PV bus is controlled by controlling Qi. Therefore, the values of Qi and delta I are to be updated in every iteration. This is as follows. So with the help of this particular formula, we will update our values accordingly. Okay, is that clear everyone? So have you all written this? आप लोगों ने लिख लिया? So अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि when we will check this QI, जब हम ये QI को कैलकुलेट करेंगे by using the formulas आपको ऑलरेडी दिखा है यहाँ पर. What are the formulas you can see here? From here we start the formula. यहाँ से आपको दिख रहा है QI का फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है. Then यहाँ पे QI R+1 का फॉर्मूला है. दैट मीन्स जब हम इटरेशंस बढ़ाएंगे तब क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है. एंड बेस्ड ऑन दिस व्हेन वी गेट द रिजल्ट्स ऑफ QI, और QI जो हमें मिला हुआ है ये अगर प्रिस्क्राइब लिमिट के रेंज में है देन इट्स ओके. इफ इट इज नॉट विद इन द रेंज, अगर वो रेंज के अंदर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है. सो वी विल हैव टू टेक द लोअर लिमिट इफ इट इज गोइंग बिलो द लोअर. मतलब लोअर लिमिट अगर 0.2 दिया हुआ है और हमें जो आंसर मिल रहा है वो सपोज 0.2 के भी नीचे मिल रहा है, सपोज 0.19 मिल रहा है या 0.14 मिल रहा है, 0.15 मिल रहा है, 0.05 मिल रहा है, वट एवर इट इज, वी हैव टू देन कंसिडर द रिएक्टिव पावर लोअर लिमिट एज द बेस वैल्यू फॉर द QI. और अगर अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो हमें अपर लिमिट का जो वैल्यू है वो कंसिडर करना है. लाइक अपर लिमिट अगर दिया हुआ है 0.5 और हमारा जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, जैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे QI ये इक्वेशन से, इस इक्वेशन से कैलकुलेट करने के बाद अगर QI हमारा QI इज एक्सीडिंग द लिमिट्स, अगर QI एक्सीड कर रहा है लिमिट्स को तो हमें जो लिमिट है उसके अंदर ही हमें चीजें लेनी पड़ेगी. ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? So this is the importance of QI. Now we will write the algorithm for the when the PV buses are present. PV buses अगर present रहते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऊपर लिखना है when PV buses are present. So PV buses जब present होते हैं तो हमारा अल्गोरिदम चेंज हो जाता है. प्लीज नोट डाउन द स्टेप्स ऑफ दिस अल्गोरिदम व्हेन द PV buses आर प्रेजेंट. सेम अल्गोरिदम है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ QI का कंप्यूटेशन के लिए लिखना है, दैट्स इट. तो QI का जो टर्म है वो आ जाएगा. तो प्लीज नोट डाउन फास्ट. आज हम ये अल्गोरिदम लिख लेंगे, कल के लेक्चर में हम इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे, देन वी विल कंप्लीट द
Gauss-Seidel method. Then we will be left over with one more method, that is the Newton-Raphson method, and then we will complete this particular unit. तो एक बार हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड भी हो जाए तो हमारा ये यूनिट कंप्लीट होगा. ओके, सो प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6. Once you are complete, reply on the chat box. I will move to the next slide and show you the next steps. So today we will write the algorithm. Tomorrow we will see the flow chart. So is it done? Shall we move to next slide? Next slide पे जाए.